الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ حضرات، آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہمارے بازو میں بیٹھے ہوئے حضرات حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب رضوی، مولانا عبدالرحیم صاحب اور ہمارے عزت مآب علی جناب الحاج اعراب بھائی سونے والے، مولانا عرفان صاحب اور ہمارے علی جناب محفوظ الرحمان صاحب باغبان، اور ہمارے جو ہے عزت مآب علی جناب توفیق قریشی صاحب، یہ ہمارے بازو میں ہمارے جلوہ گار ہیں، ہمارے جو ہے دوست احباب یہاں، ان کی جو ہے سامنے میں کچھ آپ حضرات کو جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی، بڑی مسرت ہوگی کہ سرکار سیدنا عبدالرحمان شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کا 327واں عرش شریف اس سال ہونے جا رہا ہے، جس کی نسبت سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوس غوثیہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حکیم الامت، شہزادہ قادریت، اولاد غوث اعظم، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت ڈاکٹر سید تقی پیرہ عرف روح اللہ حسینی جانشین سجادہ نشین آرکار درگاہ شریف فرمائے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جلوس بتاریخ 4 اکتوبر بروز ہفتہ بمقام شولہپور ناکہ صبح ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ تعالی نکلے گا۔ میں آپ کے تھرو سے میں سبھی حضرات کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ جلوس صبح شولہپور ناکہ سے نکلے گا، اور یہ جلوس انشاءاللہ تعالی شاہپور دروازہ ہوتا ہوا ہر سال کی طرح مثال بھی جو ہے منیار مسجد سے گزرتا ہوا، سراب بازار ہوتا ہوا، اور گاندھی چوک ہوتا ہوا، مینہاکچی چوک ہوتا ہوا، سرکار سیدنا عبدالرزاق قادری جوڑ گنبد کے پاس سے گزرتا ہوا، انشاءاللہ بس اسٹینڈ سے گزرتا ہوا، اور باگل کوٹ کراس سے گزرتا ہوا عطا اللہ شریف چوک پہنچے گا، اور وہاں سے بڑی کمان سے گزرتا ہوا جامع مسجد سے ہوتا ہوا انشاءاللہ تعالی آرکار درگاہ شریف پہنچے گا۔ وہاں صاحب سجادہ کے ہاتھوں انشاءاللہ تعالی فاتح خوانی ہوگی، اور فاتح خوانی کے بعد سبھی حضرات کے لیے کھانے کا لنگر غوث اعظم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ لہذا میں سبھی غوث اعظم کے غلاموں سے میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ اس جلوس غوثیہ میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارن حاصل کریں اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ میں پھر جو ہے اہل بیجاپور سے مخاطب ہو کر کے میں صاحب سجادہ کی جانب سے میں دعوت دے رہا ہوں آپ شہر کے تمام ہی حضرات کو کہ آپ حضرات بروز سنیچر بمقام شولہپور ناکہ بتاریخ 4 اکتوبر بروز ہفتے کو صبح ٹھیک 10 بجے شولہپور ناکہ پہ پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس جلوس میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارن حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا، ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، بغداد وہی جاتے ہیں جن کو غوث اعظم بلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو دعوت دوں گا سرکار سیدنا عبدالرحمان شاہ قادری کا جو 327واں سالہ عرش شریف ہے، آپ وہاں سندل مالی میں بھی انشاءاللہ تعالی شرکت فرمائیں۔ اس جلوس شریف میں کتنے عاشقان غوث اعظم کی تعداد ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے، کون کون سے خاص سجادہ نشین ہوں گے؟ انشاءاللہ دعوت تو سب کو دی گئی ہے، اب دیکھیے کون کون آتا ہے کون کون نہیں آتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہمیں پرخلوص امید ہے کہ عوام الناس بیجاپور کی کثیر تعداد میں انشاءاللہ تعالی شرکت فرمائیں گے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہر سال سے جو ہے ترقی ہوتی جا رہی ہے، لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی کافی تعداد میں لوگ شریک تھے، لہذا تمام لوگوں کو جو ہے دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جن کو حضور غوث اعظم سے محبت ہے انشاءاللہ تعالی وہ ضرور آئیں گے۔
पिछले जुलूस से इस जुलूस में तादाद इंशाल्लाह इस जुलूस क्या में, अंदाजा है? हाँ इंशाल्लाह ताला इस जुलूस में पिछले साल से जो है इंशाल्लाह ताला ये जुलूस बहुत ज्यादा कामयाब रहेगा। इसमें बहुत से लोग इंशाल्लाह शिरकत की मुतवक्के है, इंशाल्लाह शिरकत फरमाएंगे। इमाम गौसे आजम की याद में जो हर साल बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला जाता है, इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि हुजूर गौसे आजम से लोगों को निस्बत बताई जाए। सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान शाह कादरी का जो उर्स शरीफ आता है, औलिया उस निस्बत से औलिया इकराम की मोहब्बत जो है नौजवानों में पैदा की जाए। जो है औलिया इकराम जो है ये अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं, इनसे मोहब्बत की जाए, इनसे मोहब्बत रखी जाए, रूहानी फैज इनसे मिला करता है। उर्स शरीफ के मौके पर दरगाह में क्या क्या तकरीबात होने होंगे? इंशाअल्लाह ताला दरगाह शरीफ अब्दुर्रहमान शाह कादरी की बारगाह में जो है पहले दिन जो है इंशाल्लाह मिलाद शरीफ होता है, नातखानी होती है, उलमा इकराम तशरीफ लाते हैं। वहाँ इंशाल्लाह ताला मनकबत और नातखानी का जलसा होता है। उसके बाद सुबह को जो है फिर जो है कव्वाली वगैरह का प्रोग्राम होता है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जुलूस गौसिया का एहतमाम होता है। फिर शाम में जो है फिर संदलमाली होती है। इस तरीके से तकरीब कई दिन चलती है। जी और कुछ हाँ दावत तो दी गई है, मगर इस जुलूस का और सियासत से कोई मतलब नहीं है। अब कोई सियासी हजरात आते हैं तो उनको मना भी नहीं है, सबको दावत है। गौसे आजम का जुलूस है, सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान शाह कादरी शरीफ का संदल शरीफ है। अब सियासी आदमी लोग भी आते हैं, उलमा इकराम भी आते हैं, हिंदू भाई भी तशरीफ लाते हैं। बहुत से हिंदू भाई जो है वहाँ तशरीफ लाते हैं। लिहाजा सभी को दावत दी जाती है। कितने साल से जुलूस निकाला जा रहा है? तो ये करीब 10 साल के करीब हो गए हैं। इंशाल्लाह 14 साल करीब हमारे अरब भाई बताने 14 साल करीब हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला जब पहली मरतबा हमने जुलूस निकाला था तो बहुत से कम लोग थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हर साल जो है उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। हम तो हर साल जो है यही चाहते हैं कि हर शख्स हुजूर गौसे आजम के नक्शे कदम पे चले, सच्चाई पे चले, प्यार पे चले। हमारे मुल्क में अमन सुकून हो, हमारे मुल्क में अमन सलामती हो। हुजूर गौसे आजम का यही पैगाम है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से प्यार करो। जो है यही गौसे आजम का जो है कहना है, यही हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कहना है कि अपने वतन से प्यार करो। अपने हुजूर गौसे आजम सच्चे जो है आशिक रसूल थे और हमेशा सच्चाई पे कायम रहा करते। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर जुलूस के दिन? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों अपनी जिंदगी सच्चाई में गुजारो, झूठ से बचो, फरेब से बचो और हुजूर गौसे आजम अली रहमतुर रिदवान के नक्शे कदम पे चलो। इसी में इंशाअल्लाह ताला निजात, दुनिया में भी निजात है, आखिरत में भी निजात है। आजकल नौजवान जो है निकाह जुम्मा मस्जिद से सिर्फ उर्स मनाते हैं। आपके यहाँ साहब को मिलते हैं और नक्शे कदम पर चलने के लिए वो तवज्जो दिया नहीं जा रहा है इस आरोप। इसलिए नौजवानों को क्या समझाना चाहते हैं और क्या नए नए प्रोग्राम्स करना चाहते हैं वो समझ सके कि हुजूर के बारगाह में देखिए हर महीना कंप्लीट कर हुजूर के बारगाह में हम कैसे है तौहीन होते थे, और जो तौहीन होते रहे हम भी देंगे। हुजूर के बारगाह में कदम रखना हम लोग से अपना ही एक तरीका है। इस तरीके को अपना देना छुपाए सब पूरा सके हम कर दुआ मांगे ये नहीं है। इसलिए उस नक्शे कदम पर चलने के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है वो बताएं। देखिए हर महीना सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान शाह कादरी की बारगाह में 11वीं शरीफ होती है। हर महीना वहां पर पैगाम लोगों को दिया जाता है कि सच्चाई पे जिंदगी गुजारो, अपने अंदर इखलाक पैदा करो। अगर इखलाक नहीं तो बेकार है। आप जो है साहिब सज्जादा उलमा अहले सुन्नत का तमाम लोग ये दर्स देते हैं, लेकिन अब अवामुन्नास में कुछ कमियां यकीनन आप जो बता रहे हैं ये कमियां आई हैं। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे ये कमियां इंशाअल्लाह दूर होंगी और हम इस चैनल के थ्रू से सभी हजरत के थ्रू से फिर हम अपने नौजवानों को जो है ये दावत देंगे कि आप खुराफात छोड़ करके सच्चाई के रास्ते पे आइए, गौसे आजम के रास्ते को अपनाइए, अल्लाह वालों के रास्ते को अपनाइए, अच्छे लोगों के रास्ते को अपनाइए। इसी में निजात है। सिगरेट दारू इसमें मशहूर हो चुके हैं नौजवान, इसलिए मैं अब्बास के साथ बोल रहा हूँ क्या नौजवानों के लिए आपने सही रास्ते को चलने के लिए आपने कुछ कदम उठाए?
आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात कही, मेरे दिल को छू लेने वाली बात कही है आपने। इस गुटके में बहुत से लोग कैंसर में होकर मरते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है हमें उन नौजवानों पर कि जो अपनी जिंदगी बर्बाद अपने हाथों से कर ले रहे हैं। हमारे उलमा जुम्मे के खिताब में हर जुम्मा इस ताल्लुक से, इस टॉपिक पे बोलते रहते हैं, नौजवानों को बताते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो संभले भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो बिगड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इस चैनल के थ्रू से इंशाअल्लाह जो बिगड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह वो भी समझ जाए। ये जुलूस किस तरह से निकलेगा? जुलूस सोलापुर नाका से किस तरह से निकलेगा? उसमें डीजे वगैरह? नहीं, उसमें डीजे नहीं होगा, नाच गाना नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला नाथखानी होगी, बस नाथखानी होते हुए जो है जिक्र कर। कुछ लोग इसे शिर्क बताते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, शिर्क का मतलब ये होता है कि हम खुदा के साथ किसी को शरीक कर लें, तो हम गौसे आजम को खुदा का बंदा ही कहते हैं। खुदा का बंदा है। खुदा का बंदा ही है, खुदा के बंदे ही हैं, मगर अल्लाह के करीब है, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। अब एक एमएलए होता है, उनका एक पीए होता है, पीए वो एमएलए के बहुत करीब होता है। हम डायरेक्ट एमएलए से नहीं मिल सकते हैं, पहले पीए से कहना पड़ता है कि साहब का जरा वक्त ले। तो इसी तरीके से हुजूर गौसे आजम या अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदे हैं, तो हम इनके नजदीक होते हुए अल्लाह से मिलना चाहते हैं। किसी ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आपकी बातों से मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने जो सवालात किए आज के हालात हाजरा पे, बहुत अच्छे सवालात किए। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मेरे नौजवानों, चाहे तुम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, अल्लाह के वास्ते ये गुटखा शराब जो है सब छोड़ दीजिए, इसमें आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक नौजवान का भी जो है इंतकाल हुआ, उसकी बीवी हामिला, वो मर गया, बच्चा पैदा हुआ, गुटखा खा खा के मर गया। अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। लिहाजा मैं हमारे साहिब सज्जादा की जानिब से मैं सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते आप तमाम इन चीज से महफूज रहिए, अपनी जिंदगी बचाइए। क्या वो हालत है हर बार उर्स मनाते हैं, से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मोहब्बत करने से कुछ नहीं, देखते रहते हैं नौजवान कितने बिगड़ चुके हैं। ज्यादा नशीन के पास आते हैं, मोहब्बत से हाथ मुसाफा करते हैं, दूसरे आदमी को याद करते हैं, दुआ करते हैं, चले जाते हैं। उस रास्ते पे चलने के लिए क्या करना चाहिए, ये उलमा भी बता रहे हैं। मेरा आरोप है, बताए नहीं बताए, इसके बारे में अगली बात और इसके बारे में एक प्रोग्राम करना चाहिए, इसके बारे में समझाना चाहिए, और उनको जो भी आपने ये देना है कि उनको कैसा समझाना है, अपने तरफ खींच लेगा सही रास्ते पर मुस्तकीम के रास्ते पर चलिए। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा बोले तो बहुत अच्छा है। जी देखिए, जहाँ साहिब सज्जादा का मामला है, तो साहिब सज्जादा अपने हर मुरीद से जो भी उनके पास मिलना आता है, उससे जो है हर किसी से जो है कहते हैं ये रास्ता गलत है, नमाज पढ़ो, अपने अंदर इखलाक पैदा करो, ये तमाम चीज़ें छोड़ दो, ये शरीयत में भी मना है और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए भी मना है। अब रहा उलमा इकराम का सवाल जो आपने किया, तो उलमा इकराम जो है वक्तन फवक्तन जलसे करते रहते हैं। अभी हमारे कई सारे इजलास शहर बीजापुर में हुए, उसमें कई हमारे हिंदू भाई भी शिरकत की, बहुत से हिंदू भाई जो हमारी जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। उसके अलावा हमारी मसाजिद में जुम्मे के दिन लोग इकट्ठे होते हैं, उससे पहले हम लोग खिताब करते हैं, हर जुम्मा अलग अलग टॉपिक पे खिताब करते हैं। लेकिन हर मौलवी का यही सब जो है बयान रहता है कि सबसे पहले अपने अंदर अखलाक पैदा करो, और ये जो चीज़ तुम्हारे माशरे में दाखिल हो चुकी है इससे बचो, अपनी ज़िंदगी को बचाओ। खुदा ना खास्ता तुम इस पर अमल करते रहे, तुम्हारी औलाद का क्या होगा। तो आपकी बातों से मैं जो है मुत्तफिक हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस पे और हम लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे और हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोग जुम्मा के अंदर ये खिताब भी करते हैं कि कपड़ा 200 रुपये का पहने, अपने बच्चों को एजुकेशन सिखाइए। मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, मगर मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा एक लड़का MS कर रहा है दिल्ली में, गवर्नमेंट सीट लेकर के, MBBS अल-अमीन में किया है। तो मैं इस निस्बत से तमाम लोगों को दावत दूंगा
کہ آپ بچوں کو پڑھائیے, آدھی روٹی کھا لیجیے.